Welcome back students. Today we are going to solve question number 56A from S.C. Sharma. Basically this question belongs from the pro rata allotment when the shares are forfeited at premium. So let's see the question. First thing, I am going to read the question and summarize in a form where you can understand easily it. S Limited issued rupees 10 lakh as capital divided into shares of rupees 100 each. That's mean beta, if the one share value equals to 100, so 10 lakh share capital means total 10,000 shares are issued. Okay, so बेटा अगर मैं कहूँ तो क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पे कितने शेयर इश्यूड हो रहे हैं 10,000 shares at the rate rupees 100, premium amounted to rupees 20. Okay. Now on application rupees 10, on allotment rupees 40 per share including premium. If they are including premium, that's mean 20 is the part of share capital, 20 is the part of security premium reserve. Now balance on call, that's mean this one is the final call. 10 और 20 30 रुपीज़. सो 100 में से 30 लेस किया तो बैलेंस कितना बचा यहाँ बेटा 70 रुपीज़ का बैलेंस बचा. गॉट इट. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, द इश्यू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स. दैट्स मीन अगर 13,000 शेयर एक्स्ट्रा आ रहे हैं एप्लीकेशन के फॉर्म में, मीन्स एप्लीकेशन रिसीव्ड for 23,000 shares. Got it? How much? 23,000 shares. Now applicant for 8,000 were allotted in full. अगर मैं कैटेगरीज के हिसाब से बनाऊं तो 8,000 शेयर्स को मैंने क्या किया, पूरे फुल 8,000 शेयर्स प्रोवाइड किए. ओके. Applicant of 12,000 share, next category, applicant of 12,000 shares allotted to only 2,000 shares. Okay, and the applicant of 3,000 were not allotted any shares. That's mean these shares are rejected. Okay. Now overpayment on application were to be applied towards some due on allotment and first call, means excess money adjusted on allotment and call. On allotment and call, the one person named as Anita, who was allotted 500 shares, allotted paid only on application. Okay. Her share were forfeited and reissued at rupees 105 per share. Got it? So let us start and solve this question.
Okay. Now the first entry will be for the application money received. Bank account debit to share application account. So how much application money received? 23,000 into 10. It's a 2,30,000. Got it? 2,30,000. Now the next thing is what? Move on to transfer this money. Share application account debit to share capital account. 10,000 shares are issued and on application rupees 10. So 10,000 into 10, that's mean 1 lakh rupees as in form of share capital. Now excess money is here, yes or no? Excess money is here because these shares were allotted on pro rata basis. So how much excess? Let's find out here. Excess money. So 12,000 शेयर्स थे बेटा, उसमें से 2,000 शेयर अलॉट हो गए, तो एक्सेस शेयर हो गए आपके कितने? 10,000 शेयर एक्सेस हुए, 10 रुपीज़ उन्होंने एक्स्ट्रा में पे किया, तो कितने हो गए? 1 लाख रुपीज़. हाउ मच? 1 लाख रुपीज़. अब जरा देखो 12,000 को अगर 2,000 शेयर अलॉट हुआ है तो इनका एक्सेस मनी पहले अलॉटमेंट पे जाएगा फिर कॉल पे. यही क्वेश्चन कह रहा है. तो बेटा 2,000 इंटू 40 अलॉटमेंट पे कितना हम एडजस्ट कर सकते हैं इनका? चलो देख लेते हैं एडजस्ट कितना कितना कहाँ हो रहा है. 2,000 इंटू 40 यानी कि 80,000. ठीक है. 1 लाख में से 80,000 इनसे हम कहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे? अलॉटमेंट पे. कैसे भाई? ऑब्वियस सी बात है, इनका टोटल एक्स्ट्रा 1 लाख हमारे पास रिसीव है. 2,000 शेयर हम अगर हम अलॉट कर रहे हैं इनको, तो 2,000 इंटू 40 अलॉटमेंट पे से 80 मांगोगे. 1 लाख ऑलरेडी रिसीव है तो 80 एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे. अब जो नेक्स्ट वाला 20,000 रुपीज़ और बचेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अलॉटमेंट के बाद मनी कहाँ एडजस्ट होगी? कॉल पे. तो ये 20,000 क्या हो जाएगा बेटा इनका? कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं? कुछ सोच लो भाई. हो जाएगा. तो चलो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं. टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट किया बेटा? 80,000 टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट. बेटा इनका एडवांस मनी कितना था? 20,000 बेटा. नेक्स्ट, द रिजेक्टेड शेयर्स मस्ट बी मनी रिटर्न. सो टू बैंक अकाउंट 3,000 शेयर्स पे 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग इनका 30,000 मनी क्या हो जाएगा? रिटर्न कर दिया जाएगा. गॉट इट? ये थी अपनी स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज. नाउ वी मूव ऑन अलॉटमेंट. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट. टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. 10,000 इंटू 40, तो ये कितना हो गया बेटा? 4 लाख.
But as we know, 20 rupees is a part of share capital, 20 rupees is a part of security premium reserve. Securities premium reserve. So 2 lakh is the share capital. Why? Because 10,000 into 20 and 10,000 and 20 is the part of security premium reserve. Now we receive money here on allotment. So bank account debit. As we know, Anita, who had allotted 500 share, paid only on application. If she paid only on application, then amount of allotment not paid by Anita means. So अगर अनीता ने नहीं पे किया तो अब हमें क्या करना होगा बेटा? हमें अनीता का कॉल्सिन एरियर फाइंड आउट करना होगा. क्या फाइंड आउट करना होगा? कॉल्सिन एरियर. तो एज वी नो, अनीता को ये 500 शेयर्स जो अलॉटेड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये प्रोडाटा बेसिस पे अलॉटेड है. क्वेश्चन में से साफ साफ मेंशन है ये किस बेसिस पे अलॉटेड है? प्रोडाटा बेसिस पे. और प्रोडाटा बेसिस पे अलॉटमेंट का मतलब ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं? कैटेगरी बी से. इफ से बिलोंग्स फ्रॉम कैटेगरी बी, दैट्स मीन Anita paid extra money, excess money, which must be adjusted on allotment. So let's find out how much money of the Anita adjust on allotment. So when we find out this thing, we follow the 5 points. Got it? तो वो 5 points मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस में. चलिए देखते हैं अनीता के लिए उसको. पहला की तो अनीता के हमें अलॉटेड शेयर बेटा पता है, तो क्या निकालते हैं? अप्लाइड. उसके लिए रेशियो चाहिए. जिस कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं उसका रेशियो 12,000 और 2,000. अगर मैं 12,000 और 2,000 का रेशियो बनाऊँ तो होगा 6:1. यहाँ पर मुझे 6 यानी अप्लाइड, 1 यानी अलॉटेड. अनीता के अलॉटेड शेयर हैं 500, यानी कि 1 की वैल्यू किसके इक्वल है? 500 के. तो 6 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बेटा? 6 की वैल्यू हो जाएगी 500 इंटू 6, 3000. गॉट इट? पता चल गया. दूसरी चीज़ क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा हम लोग? कितने एक्सेस शेयर हैं? तो यहाँ एक्सेस शेयर थे 2500. गॉट इट? अगर 2500 एक्सेस शेयर है तो एक्सेस मनी निकालते हैं. 2500 शेयर्स इंटू एक्सेस मनी. अगर 10 पे किया तो कितना पे कर दिया? 25,000 रुपीज़ पे कर दिया ना भाई. अगर 25,000 रुपीज़ आ गया तो नेक्स्ट थिंग क्या चेक करेंगे हम लोग? नेक्स्ट थिंग चेक करेंगे बेटा हम लोग क्या कि अनीता से अलॉटमेंट पे कितने पैसे हमें चाहिए थे. 5,000 इंटू 40, 20,000. गॉट इट? 20,000. तो इससे क्लियर हो गया क्या कि अगर एक्सेस मनी अनीता की 25 है और 20,000 अनीता का अलॉटमेंट पे सिर्फ पैसा ड्यू हो रहा है, यानी कि अनीता का अलॉटमेंट का पूरा पैसा पेड है. सो नो वरीज. अब बैंक अकाउंट फाइंड आउट करते हैं. देखो अलॉटमेंट पे 4 लाख कॉल की गई, ऑलरेडी 80,000 रिसीव हो चुका है. तो 4 लाख में से 80 अगर माइनस करते तो कितना होता है? 3,20,000. गॉट इट? Now move on first call or final call. So share final call account debit to share capital account. 10,000 into 70, that's mean 7 lakh. Got it? Now we receive money
on final call. So bank account debit. As we know, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, कुछ कॉल्स इन एडवांस है ना बेटा, उस कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे. एज वी नो कॉल्स इन एडवांस का 20,000 था. अब बात करते हैं अनीता की फिर से. अनीता के पास एक्सेस मनी 25 थी, 20,000 एडजस्ट हो गया था. कहाँ उसका 20,000 एडजस्ट हो गया था अलॉटमेंट पे. तो कॉल का उसका पैसा एक्स्ट्रा कितना था 5,000. और अब देखो अनीता से 500 शेयर्स का कॉल का अगर 70 रुपीज़ हम कॉल करें तो कितना होता है 35,000. और उसका एडवांस कितना है, उसमें से 35,000 में से उसने एडवांस के फॉर्म में 5,000 पे किया था. यानी कि रेस्ट जो 30,000 है अनीता का वो उसने पे नहीं किया. ये कॉल्स इन एरियर हो गया. ये क्या हो गया बेटा, कॉल्स इन एरियर. किसका, अनीता का. जो कहाँ नहीं पे किया उसने, कॉल्स पे नहीं पे किया. दैट्स मीन 7 लाख के अमाउंट में से इतना अमाउंट हमको रिसीव हो चुका है. क्लियर है. टू शेयर फाइनल कॉल, सॉरी 7 लाख में से 50 हुआ तो ये बचा 6,50,000. गॉट इट. ये रहा. ओके. now we are going to forfeited these shares of the Anita. So share capital account debit 500 into 100 50,000 टू शेयर फाइनल कॉल या कॉल्स इन एरियर लिख सकते हैं आप. तो इसके कॉल्स इन एरियर कितने थे बेटा 30,000 थे. And the received money would be transferred to the forfeiture to share for feature account. Out of 50, 30,000 would be not payment, so that's mean 20,000 in a form of payment. Now these shares are reissued at 105 to bank account debit 500 into 105. Got it. 5 rupees is your extra, that is the premium money to share capital account to securities premium reserve account. So 500 into 100 इतना तो शेयर कैपिटल का पार्ट हो गया. 500 into 5 तो 2,500 इज अ पार्ट ऑफ प्रीमियम. सो बैंक में कितना रिसीव हुआ 52,500. ओके. सो नेक्स्ट एंट्री फॉर द ट्रांसफ़र. अब ट्रांसफ़र करेंगे बेटा. एज वी नो फॉर फ्यूचर का होल अमाउंट जो 20,000 है ये हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट बच गया है. क्यों? क्योंकि शेयर्स आर रीइश्यूड एट प्रीमियम. सो नाउ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट to capital reserve account 20,000. That's all for this question. Got it?